Okay. Other students, let them join. We'll start in 2 minutes. Okay. आप लोग का ऑस्ट्रोलॉजी का डेमो जो होगा, बेसिकली हम एक लेक्चर आपको देंगे, आपको पीपीटी के थ्रू वी आर गोइंग टू गिव यू द ओरिएंटेशन ऑफ द बोन्स एंड लेटर विल ट्राई टू गिव यू द वीडियोस ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द रेस्पेक्टेड बोन्स, जिसका भी रहेगा we will try to give you the videos, okay, with the actual bone and the orientation what we are giving in the PPT. ठीक है, then it will be more comfortable for you to correlate it. Okay, should we start? Okay, almost 70 students are there, they are still joining. Okay, so what is skull? Basically it has two skeleton, the cranium part which encloses the brain and the facial part, they comprises the skull. We have already discussed are the various aspects of the skull. Like first was the natalis, which we already discussed in the lecture, in the demonstration actually. The bones which you can see is the frontal bone, maxillary bone, nasal bone, and the eye orbit, zygomatic bone, mandible bone. Okay, so these all were the bones which you were able to see in the norma frontalis. As you can see, the frontal, nasal, lacrimal, zygomatic, maxilla, mandible, vomer, inferior nasal concha, temporal, ethmoid, parietal, and the sphenoid bone. Should once more revise it because we have already discussed the norma frontalis, norma verticalis, norma occipitalis, norma lateralis, the norma basalis, and the interior of the skull. Next comes the norma lateralis. As you are seeing, the bones which are being seen here is the parietal bone, frontal bone, temporal bone, occipit, and the respective all the structures. Students are still joining. Next, you can see all the bones which are being seen here. The one thing I told tree. So this was the important point which you should remember. Next comes the norma verticalis. It was simple, which is the point of meeting of the various sutures. You should remember the sagittal and the coronal sutures, where they meet. What is the highest point? These all things you should once read it. Norma occipitalis, it was also simple. The most important part was the external occipital crest, external occipital protuberance, the superior, inferior, nucleus, the highest plate. Norma basalis. Norma basalis, basically the aspect, the skull, when we'll see the skull from the inferior aspect or the base of the skull, which is known as the base of the skull, which you are seeing it is the base of the skull. When you will put the skull upside down and you will see the inferior aspect of the skull, that aspect is known as the norma basalis, the under surface of the proper. Decide करते हैं कि we divide it into 3 parts by, ठीक है. फर्स्ट लाइन जो होती है, यू कैन सी एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है विच पासिस थ्रू द पैलेटल, द इंफीरियर ऑफ योर पैलेट, जो आपके लास्ट मोलर्स दिख रहे हैं, मोलर्स के इंफीरियर बॉर्डर से एक आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी. फोरामेन मैग्नम, पोस्टरली देखो जो सबसे बड़ा यहाँ पे फोरामेन है, फोरामेन मैग्नम, वहाँ से जो उसके एंटीरियर बॉर्डर से एक ट्रांसवर्स लाइन पास होगी. तो ये 2 ट्रांसवर्स लाइन से हम नॉर्मा बेसालिस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट ऑफ बेसिकली आप देख सकते हो इसमें एल्वियोलर आर्चेस प्रेजेंट है, बीच में हार्ट पैलेट है और आपकी एल्वियोलर आर्च प्रेजेंट है. ठीक है, मिडिल पार्ट में आ जाओ. मिडिल पार्ट में यू कैन सी आपको सबसे पहले बीच में जो कॉन्का लिखा है, दैट इज़ योर नेजल कॉन्का, जो वहाँ पे एक डिप्रेशन, एक होल जो प्रेजेंट रहता है, दैट इज़ योर नेजल कॉन्का. बोन इज प्रेजेंट, दैट इज़ योर वोमर बोन. वोमर बोन के बाद यू विल सी वहाँ पे द जंक्शन इज देयर. दैट जंक्शन बेसिकली इज ऑफ द बॉडी ऑफ द स्फिनॉइड एंड द ऑक्सीपिटल बोन, बेसिलर पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन. तो दोनों बोन जहाँ पे मिल रही है जंक्शन, ठीक है, सॉरी क्लाइवस तो इंटीरियर होता है, ये दिस फॉर्म्स द बार ऑफ द बोन. ठीक है, ब्रॉड बार ऑफ द बोन.
बेसिकली यहाँ पे इट जस्ट फॉर्म अ कनेक्शन और a junction between the sphenoid bone and the occipital bone. वहाँ पे एक छोटा सा प्रोट्यूबरेंस मिलेगा आपको, एक ट्यूबरकल मिलेगा, दैट इज नोन एज योर फेरेंजियल. ठीक है. नाउ अब ये तो हमको सेंटर में हमने देख लिया कि वो कौन और आपकी ऑक्सीपिटल बोन का जंक्शन है. अब आप उसके लेटरली देखो. लेटरली में आपको कुछ ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं इस डायग्राम में. ठीक है, यू कैन सी. रुको, अब देखो ये एक्चुअल बोन है, इसकी रिप्रेजेंटेशन है व्हाट यू कैन सी. ठीक है, तो एंटीरियर पार्ट तो हमने देखा था कि जो मोलर्स के पोस्टीरियर बॉर्डर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ की तो वो एंटीरियर आ गया था, हार्ड पैलेट और आइरिस. मीडियन में देखो व्हाट आई वाज सेइंग, जो होल, जो डिप्रेशन होल आपका प्रेजेंट है वो तो कौन का था. बीच में अब वी शेप बोन विच इज प्रेजेंट, ग्रीन कलर देखो, दैट ग्रीन कलर इज योर वोमर बोन. वोमर से आप इधर आओगे तो ये दिस पार्ट इज योर बेसिलर पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन एंड द स्फेनॉइड बोन, वहाँ पे जंक्ट बार ऑफ बोन. ठीक है, एंड नाउ वोमर बोन से आप लेटरली जाओ. लेटरली आप जाओगे तो यू कैन सी 2 प्लेट्स आर देयर. ठीक है, एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड यू, वो टेरिगोपेलेटाइन फोसा, और उसमें हमने डिस्कस भी किया था कि ये जो 2 प्लेट्स दिख रहे हैं ऑन द बोथ ऑफ द साइड ऑफ द वोमर बोन, ये आपका पहला है पोस्टीरियर बॉर्डर्स हैं. पोस्टीरियर बॉर्डर देखो लेटरल टेरिगोइड प्लेट का जहाँ पे एंड हो रहा है तो वहाँ पे एक फोरामेन प्रेजेंट है, दैट इज योर फोरामेन ओवेल. एंड लेटरल टू इट एक छोटा सा और फोरामेन है, दैट इज योर फोरामेन स्पाइनोजम. व्हाट यू आर सीइंग, medial pterygoid plate, lateral pterygoid plate, foramen ovale and foramen spinosum. ठीक है, अब देखो जो मीडियल टेरेगोइड प्लेट की इनफीरियरली देखो वहाँ पे आपको एक लेसरेटेड फोरामेन दिख रहा है, सो दैट इज योर फोरामेन लैसरम. ठीक है, नाउ सी द पार्ट. अब आपका जो मैंने बोला था बेसिलर पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन, आप देख सकते हो ये पर्पल कलर की जो बोन है दैट इज ऑक्सीपिटल बोन. जो ब्राउन कलर की बोन है ये आपकी है टेम्पोरल बोन. उसमें भी देखो जस्ट आप टेरेगोइड प्लेट्स के इन्फीरियर जाओ तो एक ब्राउन कलर की बोन आपको जो दिख रही है विच इज़ बिटवीन द ऑक्सीपिटल एंड योर स्पिनॉइड बोन, दैट इज योर पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन. ठीक है, पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन. यहाँ पे आपको 2 फोरामेन दिखेंगी. एक फोरामेन है लेफ्ट साइड में देखो जुगलर फोरामेन जो वहाँ पे लेबल्ड है, दैट इज योर जुगलर फोरामेन. ठीक है, इट इज़ नॉट एक्चुअली डिपिक्टेड एज अ फोरामेन बट इट इज़ जुगलर फोरामेन. और उसके ऊपर में भी एक छोटा सा फोरामेन है, दैट इज कैनाल. ठीक है, नाउ व्हाट एल्स यू कैन सी, आप देख सकते हो ये स्पाइन ऑफ स्पिनॉइड है आपका, साथ में लेटरली वहाँ पे ये स्टाइलोमेस्टॉइड आपका फोरामेन है. वहाँ पे एक छोटा सा जिस कैरोटिड कैनाल के लेटरली जाओगे तो, और वहाँ पे स्टाइलॉइड प्रोसेस है आपका. फोरोमैंडिबुलर जॉइंट आर्टिकल वहाँ पे फॉर्म होगा. द मैंडिबल, द कंडाइल ऑफ द मैंडिबल विल आर्टिकुलेट विद द बेस ऑफ द. आप पोस्टरली आओ, आपको जो मेन एक सबसे बड़ा फोरामेन दिख रहा है दैट इज योर फोरामेन मैग्नम. उसके लेटरली 2 कंडाइल्स दिख रहे हैं, दैट इज योर ऑक्सीपिटल कंडाइल. ऑक्सीपिटल कंडाइल के थोड़ा सा लेटरली वहाँ पे देखो अप साइड एक छोटा सा फोरामेन दिख रहा है और नीचे भी एक फोरामेन दिख रहा है. ऊपर जो फोरामेन है दैट इज योर एंटीरियर कंडाइलर कैनाल और इट इज नोन एज हाइपोग्लॉसल कैनाल. और पोस्टीरियरली आओ तो पोस्टीरियर हाइपोग्लॉसल कैनाल. नाउ व्हाट यू कैन सी उस मैग्नम से आपको ऑक्सीपिटल क्रेस्ट दिख रहा है, प्रोट्यूबरेंस दिख रहा है एंड द न्यूकल लाइंस. ठीक है, इट इज़ द ग्रॉस स्ट्रक्चर आप जो देख सकते हो अभी बेस ऑफ स्कल में. नाउ कम टू द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस डायग्राम, द बेस ऑफ द स्कल. इसमें हमने जो सब देखे उसको थोड़ा सा और डायग्रामेटिक है तो जो ओरिजिनल में नहीं दिख रहा है तो दे हैव बीन पॉसिबल हो सके तो यू शुड जस्ट कोरिलेट विद दिस डायग्राम, दिस वन अप्रॉक्सीमेटली जितना हम ये इसमें रिप्रेजेंट कर सकता था. ठीक है, नाउ फर्स्ट इज योर, हमने बोला इंटीरियर पार्ट में एल्वियोलर आर्च है और हार्ड पैलेट है. ठीक है, एल्वियोलर आर्च और हार्ड पैलेट. एल्वियोलर आर्चेज है, हार्ड पैलेट में यू कैन सी टॉप मोस्ट पे एंटीरियरली वहाँ पे प्रेजेंट है आपके इंसाइसिव कैनाल्स प्रेजेंट है. ठीक है, जो इंसिसिव कैनाल है वहाँ पे एक्चुअली में आपके इंसिसिव फोरामेन्स जो होते हैं दे कंसिस्ट ऑफ द ग्रेटर पैलेटाइन वेसल और नेजोपैलेटाइन नर्व जो होता है टर्मिनल पार्ट्स को दे
give the passage to the terminal parts of greater palatine nerves, vessels and the nasopalatine. अब देख सकते हो your वहाँ पे foramens हैं छोटी छोटी. The first one is the bigger one is your greater palatine foramen. वहाँ से क्या पास होगी? greater palatine and vessels. उसके just inferiorly वहाँ पे एक present है lesser palatine foramen. तो lesser palatine foramen से lesser palatine vessels और nerves पास होंगी. ठीक है. Now middle part में आ जाओ. मिडिल पार्ट में आप बोन था. ठीक है. फर्स्ट वन जस्ट लेटरली आप पहले देखोगे तो एक लैसरेटेड जो फोरामेन दिख रहा है, दिस इज. ठीक है. ये हम इंटीरियर ऑफ द स्कल में और अच्छे से क्योंकि वो डिस्कस कर पाएंगे. फोरामेन लैसरम फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल यू शुड ये नो इट कि ये आपका फोरामेन लैसरम है. जस्ट आपकी जो मीडियली आपके बार ऑफ द बोन से जो लेटरल प्रेजेंट है. अब देखो मीडियल और लेटरल टेरेगॉइड प्लेट्स हैं. लेटरल टेरेगॉइड एंड पे जो आपका फोरामेन है दैट इज योर फोरामेन ओवेल एंड लेटरल टू इट प्रेजेंट इज फोरामेन स्पाइनोसम. ठीक है. यहाँ पे दो और एक फोरामेन प्रेजेंट होते हैं विजालियस और कैनालिकुलस इन. ठीक है. नेक्स्ट अब आ जाओ. हाँ, नाउ पोस्टीरियर पार्ट में आप थोड़े से आओ. फोरामेन लैसरम से आप पोस्टीरियर आओ तो आप यू कैन सी द जुगुलर फोरामेन. इट इज बीइंग सीन हियर. जुगुलर फोरामेन जो थोड़ा सा और वैसे ही वो इलोंगेटेड दिख रहा है. जुगुलर फोरामेन से एंटीरियर देखो कैरोटिड, उससे नीचे हाइपोग्लॉसल कैनाल और आपके ऑक्सीपिटल कंडाइल से पोस्टीरियरली आपको दिख रहा है आपका पोस्टीरियर ऑक्सीपिटल कंडाइल. ठीक है. ठीक है. अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे आपके सारे ये फोरामेंस का क्या नर्व्स पास होंगे वो इंटीरियर में आपको एक बार अभी बताऊंगी. अभी इसमें ध्यान रखना कैरोटिड कैनाल जो दिख रही है आपको. ठीक है. कैरोटिड कैनाल यू कैन सी. कैरोटिड कैनाल से आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी विथ सिंपैथेटिक प्लेक्सिस एंड इंटरनल कैरोटिड वीनस प्लेक्सिस एंड इमेजरी वेन, ये सब पास होगी आपकी कैरोटिड कैनाल. कैरोटिड कैनाल से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. ठीक है. ये मेजर होता है. स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन से देखो स्टाइलॉइड प्रोसेस से जस्ट लेटरली वहाँ पे जो दिख रहा है स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन से पास होगा आपका फेशियल नर्व एंड स्टाइलोमेस्टॉइड. अब इस डायग्राम में देखो जहाँ पे आपका सबसे पहला यू कैन सी द रेड कलर बोन इज योर स्फेनॉइड बोन. ठीक है. अब उससे देखो पाओगे तो जो ब्राउन कलर की आपको दिख रही है दैट इज योर. ठीक है. दिख रहा है. अब यहाँ पे इट इज़ नॉट क्लियरली विजिबल बट इस लाइन पे एक लेटरली आपको एक ऑब्लिक लाइन सी दिखेगी जहाँ पे ये दो बोन का जंक्शन है. वहाँ पे फॉर्म होता है आपका स्क्वैमो टिम्पैनिक फिशर. ठीक है. स्क्वैमस पार्ट है उधर से स्क्वैमस पार्ट ऑफ ये आपका टेम्पोरल बोन होगा और ये आपका पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन होगा. तो इनके बीच में एक फिशर बनता है दैट इज नोन एज योर स्क्वैनिक फिशर. ठीक है. अब यहाँ पे दिस पार्ट और जो पेट्रो टिम्पैनिक फिशर है उसमें आपकी कॉर्डा टिम्पनाई नर्व, रिमेंबर कॉर्डा टिम्पनाई नर्व एंड तो कॉर्डा टिम्पनाई नर्व और एंटीरियर टिम्पैनिक आर्टरी आपकी पास होगी. ठीक है. डन. दिस इज योर बेस ऑफ स्कल. हाइपोग्लॉसल कैनाल था वहाँ से आपकी हाइपोग्लॉसल नर्व पास होगी. ठीक है. तो ये बेस. चलो अब हम आएंगे इंटीरियर ऑफ द स्कल. दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट. ये हमने वैसे ड्यूरल कैविटी ड्यूरल वीनस साइनस वाले लेक्चर में हमने एक बेसिक इसका डिस्कस किया था. चलो नाउ यू कैन सी द 3-4 कलर ऑफ बोन्स. यू कैन सी फर्स्ट इज योर ग्रीन कलर, इट इज योर फ्रंटल बोन. पिंक कलर इज योर डार्क पिंक एक्चुअली रेड बोन. येलो इज योर टेम्पोरल बोन, पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन एंड स्क्वैमस पार्ट. And the pink light outer side it is the squamous part of temporal bone. Purple is your occipital bone. So these are your bones. ठीक है. Now of the skull को हम various 3 फोसाज में डिवाइड करते हैं. ठीक है. You have seen और आप 3 steps में प्रेजेंट होते हैं. जो एंटीरियरली प्रेजेंट है दैट इज योर एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल में मिडिल क्रेनियल फोसा एंड पोस्टीरियरली पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा. तो सबसे पहले हम देखेंगे एंटीरियर क्रेनियल फोसा. एंटीरियर क्रेनियल फोसा पार्ट में देखो इट इज बीइंग डिपिक्टेड फ्रंटल क्रेस्ट. फ्रंटल क्रेस्ट. ठीक है. जो वर्टिकल क्रेस्ट जैसे कि पीछे हमने देखा था ना ऑक्सीपिटल क्रेस्ट, वैसे यहाँ पे फ्रंटल क्रेस्ट प्रेजेंट होता है. उसके जस्ट थोड़ा सा पोस्टीरियरली आओ एक फोरामेन प्रेजेंट होता है दैट इज योर फोरामेन सीकम. एक थिन एलिवेशन आपको बोन की दिखेगी बिल्कुल सेंटर में
ethmoid bone है, that is your ethmoid bone, and the thin center elevated part is that is known as your crista galli. उसके along you can see कि बहुत सारे सीव लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज योर क्रिब्रीफॉर्म प्लेट ऑफ इथमॉइड. आपको बहुत सारे आपका क्रिब्रीफॉर्म प्लेट ऑफ इथमॉइड बोन है, ठीक है. वहाँ पे एंटीरियरली जो फोरामेन्स प्रेजेंट है पोस्टीरियरली, तो एंटीरियर योर एंटीरियर इथमॉइडल फोरामेन, पोस्टीरियरली इट इज योर पोस्टीरियर इथमॉइडल फोरामेन. रेस्ट इज योर फ्रंटल, आपको फ्रंटल बोन दिख रहा है जहाँ आपका फ्रंटल लोब ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर लाई करेगा, ठीक. अब हमने क्या डिस्कस किया, कौन थे. फर्स्ट वाज योर फोरामेन सीक मेजर वेन पार्ट, क्रिब्रीफॉर्म प्लेट्स है, यहाँ से फोरामिना है क्रिब्रीफॉर्म प्लेट ऑफ इथमॉइड में, वहाँ से आपके ऑल्फैक्टरी नर्व्स होते हैं, ठीक है. इसके अलावा जो एंटीरियर इथमॉइडल फोरामेन है और पोस्टीरियर इथमॉइडल फोरामेन है, तो उससे उनकी रेस्पेक्टिव आर्टरी, वेन, और जैसे एंटीरियर इथमॉइडल फोरामेन से एंटीरियर इथमॉइडल नर्व, आर्टरी और वेन पास होगी, और पोस्टीरियर इथमॉइडल फोरामेन से पोस्टीरियर इथमॉइडल आर्टरी, नर्व और वेन पास होगी, ठीक है. सो दिस इज योर एंटीरियर क्रेनियल फोसा, जहाँ पे बॉडी ऑफ स्पिनॉइड का आपका पोस्टीरियर फॉर्म हो रहा है. अब आ जाओ मिडिल क्रेनियल फोसा. मिडिल क्रेनियल फोसा को अगर आप डिमार्केट करोगे तो देख सकते हो जो आपका तो लेसर विंग ऑफ स्पिनॉइड का पोस्टीरियर बॉर्डर, और इधर आप पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन जो आ जाओगे, इनके बीच, इन दोनों के बीच एंटीरियरली और पोस्टीरियरली दे आर बीइंग डिमार्केटेड. तो ये बीच का जो आपका स्ट्रक्चर आएगा दैट इज योर मिडिल क्रेनियल फोसा, ठीक है. अब मिडिल क्रेनियल फोसा में हमको स्ट्रक्चर्स क्या दिख रहे हैं. आपको एक ऑप्टिक कैनाल दिख सकती है दोनों साइड, बिल्कुल सेंटर पे आओ, सल्कस ये आपकी स्क्री है, दैट इज योर ऑप्टिक कैनाल. बीच में वो जो जगह है दैट एक ग्रूव फॉर्म हो रहा है, दैट इज योर सल्कस कैज़मेटिकस, जहाँ पे ऑप्टिक कैनाल, ऑप्टिक नर्व वहाँ पे एंटर करेगी, क्रॉस होगा तो यहाँ पे एक सल्कस फॉर्म होगा, दैट इज योर सल्कस कैज़मेटिकस. उसके बाद देखो एक सैडल शेप जो स्पेस बन रहा है, दैट इज योर सेला टर्सिका, जिसमें इट इज ऑल्सो नोन एज हाइपोफाइजियल फोसा, जिसमें आपका लाई क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड. इसके एंटीरियर और पोस्टीरियर देखो एक एलिवेशन बोन का दिखता है, ठीक है, लेटरल पार्ट में. तो एंटीरियरली प्रेजेंट होता है आपका एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस, पीछे पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है आपका पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस, यहाँ पे दिख रहा है वो, ठीक है. इसके बाद हम लेटरली आएंगे. लेटरली देखो जो आपका लेसर विंग ऑफ स्पिनॉइड था उसके नीचे आ जाओ तो वहाँ पे आपको एक फिशर दिखेगा, दैट वाज योर सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर. सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से नीचे आओ, जो ओवल फोरामेन है, दिस इज योर फोरामेन ओवेल. उसके पास आओ, उसके लेटरली आओ, फोरामेन मिडिल, यहाँ पे ग्रूव्स दिख रहे हैं, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी के ग्रूव्स दिखेंगे इस फोरामेन स्पाइनोसम के बाद में, ठीक है. सो आपको ये फोरामेन दिख रहा है. अब फोरामेन ओवेल के मिडली जाओ, यहाँ पे एक लेसरेटेड फोरामेन दिख रहा है, व्हाट यू हैव सीन इन द नॉर्मा बेसालिस, दिस इज योर फोरामेन लेसरम, ठीक है. अब ये जो येलो पार्ट आपका बोन का दिख रहा है, पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है, और ये स्क्वैमस पार्ट है. तो ये जो आपका पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन दिख रहा है, ये एक्चुअली में एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, ट्रायंगल की तरह वहाँ पे प्रेजेंट होता है. जो मिडिल और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा ट्रायंगल्स की स्लोप्स हैं, तो इसके सुपीरियरली यहाँ पे प्रेजेंट होता है सुपीरियर पेट्रोजल साइनस, ठीक है. तो ये सारे स्ट्रक्चर्स आपके मिडिल क्रेनियल फोसा में प्रेजेंट होते हैं. अब देखते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर से क्या क्या पास होगा, ठीक. सबसे पहला हमने देखा था ऑप्टिक फोरामेन, ऑप्टिक कैनाल, वहाँ से क्या पास होगा, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर. आपने आई बॉल ऑर्बिट में ये डिस्कस किया होगा कि सुपीरियर, उससे क्या क्या पास होता है. सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से बेसिकली सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर जो है उससे वो एक्चुअली फिशर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है बाय योर कॉमन टेंडिनस रिंग ऑफ जिन. अगर आपको ऑक्यूलर मसल्स याद है तो इसके अलॉन्ग ही सारे वो मसल्स अटैच होते हैं. तो ये जो लिगामेंट है, ये टेंडिनस रिंग है, ये सुपीरियर शोन हियर, ये जो ब्लैक पार्ट फिशर, इसको पहले कोरिलेट करेंगे हम, पहले इससे देखते हैं. तो ये जो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा. तो जो द पार्ट विच इज प्रेजेंट विद इन द कॉमन टेंडिनस रिंग, तो वहाँ से आपके क्या क्या इसके स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के, ये याद रखना स्ट्रक्चर्स पासिंग. तो विद इन द टेंडिनस रिंग सुपीरियर एंड इंफीरियर डिविजन ऑफ द ऑक्यूलोमोटर नर्व, ठीक है, नेजोसिलियरी नर्व, एब्ड्यूसेंट नर्व एंड द सिंपैथेटिक रूट ऑफ सिलियरी गैंग्लियन.
तीस टेंडिनस रिंग के बीच से जो पास आउट होगा, सुपीरियर एंड inferior डिवीजन ऑफ oculomotor. Now अगर if you are having your book then you can open and you can see that pathetic root of ciliary ganglia. अब द पोर्शन प्रेजेंट अबो और लेटरल टू द कॉमन टेंडिनस रिंग, वहाँ से पास होगी आपकी ट्रोक्लियर फ्रंटल लेक्राइमल नर्व एंड आर्टरी, सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन एंड द रिकरेंट मेनिंजियल ब्रांच ऑफ लेक्राइमल आर्टरी. यू हैव टू रिमेंबर एनी हाउ. यहाँ से इंपॉर्टेंट जैसे नर्व्स याद रखना, LFT लेक्राइमल फ्रंटल एंड ट्रोक्लियर. इसके अलावा दो आर्टरीज है, लेक्राइमल आर्टरी और रिकरेंट मेनिंजियल ब्रांच ऑफ लेक्राइमल आर्टरी, और एक है सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन. ठीक है, वेन पास होगी. तो ये आपको सुपीरियर और ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट. चलो नेक्स्ट आ जाओ आप. ROS पहला था R है आपका फोरामेन रोटेंडम. फोरामेन रोटेंडम से मेजरी वेन. फिर आ जाओ फोरामेन ओवेल. एवरीवन इज नोन कि फोरामेन ओवेल से क्या पास होगा, मेल. A नर्व, एक्सेसरी मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, लेसर पेट्रोसल नर्व एंड द एमिजरी वेन. फिर एक छोटी सी नर्व पास हो रही, एक फोरामेन है, फोरामेन स्पाइनोसम, जहाँ से आएगी आपकी मिडिल मेनिंजियल आर्टरी एंड नर्वस स्पाइनोसिस. ट्रंक ऑफ मैंडिबुलर नर्व याद करो, वहाँ से एक आया था आपका नर्वस स्पाइनोसिस, वो और मिडिल मेनिंजियल आर्टरी. मिडिल मेनिंजियल आर्टरी आके यू कैन सी आगे ये जो ग्रूव है आपको, ये मिडिल मेनिंजियल आर्टरी का ग्रूव है जो डिवाइड करता है एंटीरियर और पोस्टीरियर डिविजन्स में. ठीक है, तो ये द ग्रूव यू कैन, आप इसको ईजिली वहाँ देख सकते हो. जो ग्रूव जहाँ से शुरू होगा वो इस फोरामेन स्पाइनोसम है, जिस फोरामेन से स्टार्ट होगा. ठीक है, मीडियली टू इट वाज दिस. ठीक है, ये सब आपको बेसिकली इससे याद रखना है. तो दिस इज योर मिडिल क्रेनियल फोसा. हमने क्या क्या देखा मिडिल क्रेनियल फोसा में? ऑप्टिक कैनाल, ऑप्टिक क्याज्मा, सला टर्सिका, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर. उसके 3 पार्ट्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पास हुए? फोरामेन रोटेंडम, फोरामेन ओवेल, फोरामेन स्पाइनोसम, फोरामेन लैसरम. आपको ये याद रखना है. ठीक है, नाउ अब आ जाओ पोस्टीरियर, आपका पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा. पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में फर्स्ट थिंग देखो, जो पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस से जाओगे ना, तो पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस जो हमको सेला टर्सिका के पोस्टीरियरली वहाँ पे बॉर्डर जो दिखा था, वहाँ से आपको एक सिटिंग बोन पूरी फॉर्म होती है, जो फोरामेन आंट होता है बोन का. दिस इज नोन एज योर क्लाइवस. एंड जो सबसे लार्जेस्ट फोरामेन आपको दिख रही है यहाँ पे, दैट इज योर फोरामेन मैग्नम. ठीक है, अब जो हाईएस्ट उसका एलिवेशन है दैट इज योर इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस. सेम वे जैसे आउटर में वो एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल है, वैसे ही वो इनसाइड में इंटरनल ऑक्सीपिटल है. ठीक है, नाउ यू कैन सी लेटरली वो जो ग्रूव पास हो रही है, ग्रूव इज फॉर द ट्रांसवर्स एंड द सिग्मोइड साइनस. जो फोसा दिख रहा है फोरामेन मैग्नम में और ये सल्कस के बीच में, तो ये फोसा है जो है वो है सेरिबेलर फोसा, जहाँ पे आपका सेरिबेलम रेस्ट करता है. ठीक है, और उसके सुपीरियरली जाओगे तो फोसा आएगा, वो फोसा होगा बेसिकली आपका फॉर द ऑक्सीपिटल लोब ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर. ठीक है, नाउ यू कैन सी जो पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है, वहाँ पे बिल्कुल सेंटर में एक आपको अलग से फोरामेन दिख रही, दैट इज फॉर द इंटरनल दैट इज द इंटरनल एकॉस्टिक मेटस. इसकी ओपनिंग है यहाँ पे. ठीक है, उसके बाद आओ, आपको जुगलर फोरामेन दिख रहा है, एक इलोंगेटेड फोरामेन, दैट इज योर जुगलर फोरामेन. फिर आपके फोरामेन मैग्नम से बिल्कुल लेटरली एंटीरियर साइड में है आपका हाइपोग्लाइसल कैनाल, और पोस्टीरियर यहाँ पे एक और रहता है पोस्टीरियर कंडाइलर कैनाल. ठीक है, सॉरी पोस्टीरियर की ओपनिंग होती है. तो ये है आपका हाइपोग्लॉसल कैनाल और ये है आपका फोरामेन मैग्नम. नाउ विल सी द स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू इट. सबसे पहला इंटरनल ऑडिटरी मेटस. जो इंटरनल ऑडिटरी मेटस है, पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन. हाँ, ये याद रखो, जो पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन मैंने बोला, ये एक तरीके से पिरामिड, एक ट्राइंगल की तरह दिखता है. तो जो अपेक्स है वो तुम देख सकते हो, इसमें सुपीरियर सेजाइटल साइनस जाएगा. ठीक है, बट इसके नीचे सुपीरियर पेट्रोजल साइनस, सॉरी, और इसके नीचे से जाएगा टुवर्ड्स दी आपका ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, जो उसकी बाउंड्री है नीचे पे, वहाँ पे जाएगी इंफीरियर पेट्रोजल साइनस. ठीक है, अब इंटरनल ऑडिटरी मेटस, वहाँ से पास होती है 7th 8th क्रेनियल नर्व, नर्वस इंटरमीडियस एंड द इंटरनल ऑडिटरी वेसल्स. ठीक है, 7th और 8th यहाँ से गए, 7th एंड 8th इंटरनल एकॉस्टिक मेटस. आ जाओ जुगलर फोरामेन. जुगलर फोरामेन से पास होती है 9th 10th एंड 11th cranial nerve. 9th is your glossopharyngeal, 10th is your vagus and 11th is your accessory nerve. 9th 10th and 11th cranial nerve from the मिडिल पार्ट, जो जुगलर फोरामेन के मिडिल पार्ट से बेसिकली पास होगी वहाँ पे. ठीक है, जो जुगलर फोरामेन है वो एक इलोंगेटेड, बट उसके ठीक है, हाइपोग्लॉसल कैनाल से क्या है 12th क्रेनियल नर्व, हाइपोग्लॉसल नर्व
साथ में वहाँ पे मेनिंजियल ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी पास होगी। पोस्टीरियर कंडाइलर कैनाल, तो पोस्टीरियर कंडाइलर कैनाल से बेसिकली आपके एमिजरी वेन एंड मेनिंजियल ब्रांच ऑफ ऑक्सीपिटल आर्टरी जाती है। द इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर इज व्हाट इज बीइंग पास थ्रू दिस फोरामेन मैग्नम। ठीक, तो फोरामेन मैग्नम बेसिकली आप देख सकते हो सबसे ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है यहाँ पे बाय द मीन्स ऑफ एलार लिगामेंट। एलार लिगामेंट इस फोरामेन मैग्नम को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। छोटा वाला जो है वो एंटीरियर पार्ट है एंड रेस्ट जो बिगर पार्ट है दैट इज योर पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट में 3 लिगामेंट्स ही होते हैं, 3 लिगामेंट्स इन योर एंटीरियर पार्ट। एपाइकल लिगामेंट ऑफ डेम लिगामेंट, बॉन्ड ऑफ क्रूसीफॉर्म लिगामेंट, थर्ड इज योर मेम्ब्रेना टेक्टोरिया। 3 लिगामेंट्स फ्रॉम एंटीरियर पार्ट, एपाइकल लिगामेंट ऑफ डेंस, क्रूसीफॉर्म लिगामेंट एंड मेम्ब्रेना टेक्टोरिया। ACM ये आपका एंटीरियर पार्ट से हुआ। पोस्टीरियर पार्ट से बेसिकली आपका पास होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला का लोअर पार्ट होगा। गुड आफ्टरनून भूमिका। ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ मेडुला। उसके अलावा एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, द पेयर ऑफ पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी एंड द स्पाइनल रूट ऑफ एक्सेसरी नर्व, ये आपके पोस्टीरियर कंपार्टमेंट से पास होंगे। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब ये पूरा आपका कंप्लीट हो रहा है क्या, इंटीरियर ऑफ द स्कल। इंटीरियर ऑफ द स्कल, अब आपको जो बेसिक बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के एंटीरियर पोस्टीरियर इथमोइडल फोरामेन से क्या पास हुआ, आपका सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर फोरामेन रोटेंडम ROS, रोटेंडम ओवेल स्पाइनोसम, ठीक है, फोरामेन लैसरम, जुगुलर फोरामेन, हाइपोग्लॉसल कैनाल एंड फोरामेन मैग्नम। ये सारी चीज़ें इनमें से क्या क्या पास हुई हैं यू शुड रिमेंबर, बिल्कुल टिप्स पे आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, सो नाउ यू कैन सी, इसको कोरिलेट कर सकते हैं। ये ओरिजिनल वो जो बोन का है, ठीक है, बट हाँ इसमें देख सकते हो आप एंटीरियर क्रेनियल फोसा, बीच में क्रिस्टा गिलाई है, साथ में क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है, फिर आपका आएगा ऑप्टिक कैनाल, बीच में ये सल्कस क्लाज्मेटिकस, सेला टर्सिका, एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस, पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस, क्लाइवस, फोरामेन मैग्नम। लेटरली देखो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है, फोरामेन रोटंडम, फोरामेन ओवेल, फोरामेन स्पाइनोजम। स्पाइनोजम को आप कैसे डिमार्केट करोगे वहाँ पे हमेशा कि उससे जस्ट स्टार्ट होती है आपकी मिडिल मेनिंजियल आर्टरी की ग्रूव, ठीक है, फिर उसके मीडियली प्रेजेंट एक लैसरेटेड फोरामेन, फोरामेन लैसरम, इंटरनल एकॉस्टिक मिएटस, उसके नीचे जो पेट्रस पार्ट ऑफ ट्रायंगुलर टेम्पोलर बोन है उसके नीचे जस्ट आएगा जुगुलर फोरामेन, और हाइपोग्लॉसल कैनाल और फोरामेन मैग्नम। सो दिस इज योर इंटीरियर ऑफ द स्कल। अब ध्यान रखो, अगर हमको इंटीरियर याद रखना है तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। 3 स्टेप्स में है, ये 3 क्रेनियल फोसा है। रिलेटेड स्ट्रक्चर्स, फोरामेन्स एंड व्हाट आर दी स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू इट। लिमिटेड है, हार्डली 9 से 10 फोरामेन्स है, जिसको बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने जैसे जैसे बताया सबका याद करना है कि क्या क्या चीज़ें पास हुई हैं, ठीक है। बेस ऑफ दी स्कल को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, इसको भी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। फर्स्ट एंटीरियर पार्ट जो आपका जिसमें हार्ड पैलेट आएगा, मिडिल पार्ट में आप देख सकते हो स्फिनॉइड और पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन से, और पोस्टीरियर पार्ट में आपका जाएगा ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है। ऑल डन। किसी को कुछ डाउट इसमें? विल ट्राई कि जल्द से जल्द आपका फोरामेन मैग्नम, ओके। फोरामेन मैग्नम में दो कंपार्टमेंट, वहाँ के एक एलार लिगामेंट होता है जो फोरामेन मैग्नम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर। यहाँ पे देखो इस डायग्राम में देख सकते हो फोरामेन मैग्नम कैसे दिख रहा है। तो इस फोरामेन मैग्नम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो बीच में इंटीरियर पार्ट में आपकी 3 चीज़ें, ACM, अपाइकल लिगामेंट ऑफ डेंस, क्रूसीफॉर्म लिगामेंट और मेम्ब्रेना टेक्टोरिया, ये 3 लिगामेंट्स अटैच होंगी एंटीरियर पार्ट से। अब पीछे देखो जो डायलेटेड पार्ट है, उस डायलेटेड पार्ट में बेसिकली लोअर पार्ट ऑफ मेडुला, ठीक है। फिर एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, एंटीरियर प्रेजेंट रहती है, उसकी पोस्टीरियरली वहाँ पे होती है पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, ये पेयर्स में रहती है, और वर्टिब्रल आर्टरी की पेयर, साथ में स्पाइनल रूट ऑफ एक्सेसरी नर्व। इसके अलावा भी वहाँ पे सिंपैथेटिक प्लेक्सेस, वर्टिब्रल आर्टरी के अलॉन्ग जो सिंपैथेटिक प्लेक्सेस होता है वो भी पास होता है, ठीक है। सो दिस इज योर आपका फोरामेन मैग्नम, ओके, ठीक है। हाँ मैं आपको क्या बताई थी, ये तो 3 पार्ट्स को कुछ और डाउट?
विल ट्राई कि आपकी जल्द से जल्द, अब इसके बाद हम इसके स्कल और प्रॉपर वीडियोस उसका विल ट्राई कि प्रॉपर वीडियो जिसमें प्रॉपर आपके ओरिजिनल स्कल में सारे फोरमेंस को डिफाइन करते हुए हम लोग आपको इसका वीडियो पास ऑन करें। ठीक है, आपके बोन्स के अब लेक्चर ऐसे ही होंगे। एक प्रेजेंटेशन आपकी ओरिएंटेशन बोन के लिए एक पीपीटी की होगी और नेक्स्ट आपकी इसमें होगी। कल भी कोशिश करना कि जल्दी आप आ जाओ, जल्दी ऑनलाइन हो जाओ। कल तो और छोटी क्लास है, हार्डली 15-20 मिनट्स में विल डिस्कस दी मैंडिबल एंड दी, चलो फिर उसके दोनों के वीडियोस। बट वंस प्लीज़ अपनी बुक खोल के एक बार पढ़ो, ठीक है।